Hello dear children, welcome you all to this video and in today's class. Children, in today's class I am going to explain you chapter 3 from class 8th standard mathematics, and the sums which I am explaining here, these sums are of the book S. Chand Composite Mathematics, right? So the name of the topic is squares and square root, as you all can see here on the screen. So before we do the sums, let's understand the topic, that what is square and square root. If I ask you to multiply 2 by 2, you all will say 2 2s are 4. And if you are supposed to write this in an exponential form, then you all will say that this is 2 square. Now this is the square, that means this 4 is the square of 2, right? 4 is a square of 2, square of 2. And if we reverse this, then we can say 2 is a square root of 4. 2 is a square root of 4. The symbol of square root is like this, and this we read as under root 4. That means इसका मतलब हुआ कि 4 का स्क्वायर रूट is what? Is 2. Now the question is how we will understand that whether a number is a perfect square or not. For example, if I tell you that check whether 10 is a perfect square or not. So what you will do here, you will find the prime factorization of this 10. So you will get 2 multiply by 5. If you see here that all the factors of this 10 can be expressed as a product of the pair of equal factors, then you will say that the number is a perfect square. And if the number can't be expressed as a product of the pair of equal factors, then you will say no, the number is not a perfect square. For example, this is not a perfect square number because there is only 1 2 and 1 5. यहाँ पर डबल डबल करके फैक्टर जो है वो होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए. नाउ इफ़ आई आस्क यू चेक 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, वी ऑल नो दैट कि 16 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा. Now if you express this as a product of pair of equal factor, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में अगर आप करोगे तो ये दोनों मिलकर के 2 स्क्वायर फॉर्म करेगा और ये दोनों मिलकर के एक अलग 2 स्क्वायर फॉर्म करेगा. सो वी कैन से दैट 16 इज अ स्क्वायर नंबर. तो ये सब बेसिक चीज़ है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सम्स. What is the first question here? The first question is, using the prime factorization method, find which of the following number is a perfect square. So the first question is 400. The first number is 400, right? So सबसे पहले हम लोगों को करना है 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग. और इसको अगर हम लोग स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वी कैन राइट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर. तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ऑल द फैक्टर्स आर पेयर, सो 400 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इट्स ऑल राइट. अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट टू हियर दैट 400 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, हेंस 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली फॉर 768 भी हम लोग यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जो कि यहाँ पर निकाला गया है, यू ऑल कैन सी. और यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 जो है ना वो पेयर्ड नहीं है, यानी कि 3 यहाँ पर सिंगल बच गया है. सो 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट. Next one, 768 is not a perfect square number. The next is 1296. So we will find the prime factorization of this, and here we can see that कि all the factors are paired, यानी कि सभी paired हैं. So this is a perfect square number.
and the next is 8000, and if you do the prime factorization of 8000 you will see that ki 5 is left unpaired here, so this is not a perfect square number because of this 5. नाउ नेक्स्ट नंबर 5 9025 का हम लोग इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसमें जैसा कि देख रहे हैं कि 37 यहाँ पर सिंगल बच गया, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, सो 37 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज दैट? Find the smallest number by which each of the given numbers must be multiplied so that the product is perfect square. So क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि 10 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम लोग इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो इसमें भी हम लोगों को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, विच यू ऑल कैन सी हियर, दिस साइड इट इज़ डन. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 जो है वो यहाँ पर बच गया है अनपेयर्ड. तो इसमें अगर एक 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, देन दिस 2 एंड दिस 2 विल मेक अ पेयर ऑफ 2 एंड द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज व्हाट? 2 हियर. तो इसमें सिर्फ यही पूछ रहा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है. अगर इसमें और एक क्वेश्चन को ऐड कर देता कि फाइंड द स्क्वायर नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते, 512 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 1024 होता, और फिर इसका स्क्वायर रूट जो है वो हम लोग निकालते हैं, जो कि इस केस में नहीं है. तो इसका स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस 2 को भी इंक्लूड कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई. इसका अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पर, और इसमें सिर्फ एक 2 जो है वो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, तो एक 2 यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा. 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2, राइट, 2 इंटू 2, तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32. So 32 is a square root of 1024. Okay. Now नेक्स्ट वन इज 700. तो 700 का व्हेन वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इस तरह से कुछ आएगा, एंड हियर ऑल्सो वी कैन सी दैट 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 7. इन द सेम वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस नंबर ऑल्सो 1323. इफ यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, देन 3 4 ज़ा 12 3 4 ज़ा 12 1 आया. अगेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा 21, एंड 147 इज अगेन डिविजिबल by 3 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27 एंड 7 7 हो गया. सो 3 स्क्वायर इंटू 1 3 इंटू 7 स्क्वायर, तो ये तो पेयर्ड है, दिस इज ऑल्सो पेयर्ड, बट दिस 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज व्हाट? इट्स 3. द नेक्स्ट इज 35280. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है, यू ऑल कैन डू दैट. 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, एंड हियर 5 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 5. आई होप कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सही है. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पर भी हमें करना वही काम है, उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, जो शॉर्ट था मतलब जो कम हो रहा था हमने उसमें एक उससे और मल्टीप्लाई कर दिया था, और यहाँ पर भी वही है, हम लोग इसमें डिवाइड करके उसको रिमूव कर देना है. लाइक 180 का इफ वी डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, देन वी विल गेट 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, एंड एज वी ऑल कैन सी कि 5 इज लेफ्ट अनपेयर्ड हियर. तो अगर हम लोग इसमें 5 से डिवाइड कर दें, लाइक 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 है, और अगर हम लोग इसको 5 से एक 5 से डिवाइड कर दें तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. किंतु इस केस में अगर इसमें और एक पार्ट ऐड होता कि व्हाट इज़ दैट नंबर, तो वो नंबर होता 180 डिवाइडेड बाय 5, उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, तो ये होगा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30 36, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो हो जाता 2 इंटू 3. सिर्फ इसमें हम लोगों ने इस वाले को भी
ऐड किया था, यानी कि ऐड करने का मतलब है मल्टीप्लाई किया था मल्टीप्लिकेशन केस में, लेकिन इसमें हम लोगों को इसको रिमूव कर देना होगा बिकॉज डिवीजन में क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया तो ये हट जाएगा और इसका जो आंसर है वो क्या होगा 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा। एंड वी ऑल नो कि 36 का स्क्वायर रूट जो है ऐसे भी 36 ही होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया, लेकिन दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर एज पर द क्वेश्चन गिवन हियर। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए तो हाउ विल यू डू। द नेक्स्ट इज 1575। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो 7 इज द आंसर। In the same way you all can understand 6, 9, 1, 2. This is not done here, but यहाँ पर देखते हैं 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 1 11, 2 5 जा 10 and 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 3 जा and 2. Again this will go by 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. Again this will go by 2, 1 0 8 और इस तरह से जो है वो ये चलता जाएगा। यहाँ पर होगा 54। अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा 27 टाइम्स में, फिर ये 3 से डिविजिबल होगा 9 टाइम्स में और ये फिर 3 से डिविजिबल होगा 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर 1 पेयर बन गया, सेकेंड पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, 3 का भी एक पेयर बन जाएगा। तो और एक 3 जो है वो यहाँ पर, ये वाला 3 यहाँ पर बच जा रहा है जो पेयर नहीं फॉर्म कर रहा है। सो रिक्वायर्ड नंबर टू बी डिवाइडेड इज 3 हियर। ओके, दैट यू कैन राइट हियर इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। द नेक्स्ट इज 19,200। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वी ऑल आर ऑब्जर्विंग हियर दिस 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो रिक्वायर्ड नंबर टू बी डिवाइडेड इज 3। आंसर वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। Number 1, the number of digits in a square number are always even. This statement is false because 121 is a square number, but there are 3 digits, so it is odd. So that the statement is false. The square of a prime number is always prime. Why? 3 is a प्राइम नंबर, लेकिन इसका स्क्वायर होता है 9, बट 9 इज नॉट अ प्राइम, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। The difference of 2 square number is a square number, so this statement is false. The difference of 2 square number is a square number, so 16 minus 9, 16 is a square number, 9 is also a square number, but इस इन दोनों का difference होता है 7, which is not a square number, so the statement is false. And 4000 is a square number, so this statement is false because there are odd number of zeros. This can't be a square number. Question number 5. Just by looking at the following numbers, give reason why these are not a perfect square. So before we do this, let me tell you one thing, that a number ending with 2, then 3, then 4, 5, 6, 7 and 8 and odd number of zeros. Odd number of zeros कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट में आप 2 देखें या फिर 3 देखें या फिर 7 देखें या फिर 8 देखें या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरो देखें, यानी कि 1 0 देखें, 3 0 देखें, 5 0 देखें, तो नंबर कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बट ऑन द अदर साइड इफ़ यू सी कि नंबर का वंस डिजिट 1 है या फिर वहाँ पर 4 है या फिर 5 है या फिर 6 है या फिर 9 है या फिर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो इस केस में क्या होगा, नंबर मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर और मे नॉट। ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 यहाँ से लूँ तो 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर वाइल 54 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात है कि हमें उसे चेक करना पड़ेगा कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। अब आइए हम लोग जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको समझते हैं। 2 3 6 7 क्या है, इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसा कि मैंने आपको इसका प्रॉपर्टी बता दिया है। ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ है, कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 है,
it cannot be a perfect square number. 8 है, it cannot be a perfect square number. 2 है, it cannot be a perfect square number because it is ending with 2. What will be the unit digit of the square of the फॉलोइंग नंबर? तो अब इसके लिए भी हम लोग एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अगर मान लीजिए किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा. किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा. अगर कोई भी नंबर 3 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर जो है वो 9 से एंड होगा. अगर कोई नंबर 4 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 6 से एंड होगा. और ऐसा इसलिए होगा बिकॉज 4 स्क्वायर इज 16 और 16 में 6 इज इन द वंस प्लेस. अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी 5 से एंड होगा. अगर कोई नंबर 6 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी 6 से ही एंड होगा. अगर कोई नंबर 7 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर जो है वो 9 से एंड होगा. कैसे? अगर मान लीजिए 17 है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 और 49 में 9 इज़ इन द वंस प्लेस. अगर कोई नंबर 8 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 4 से एंड होगा. और अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 1 से एंड होगा. और अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी 0 से ही एंड होगा. तो इसे याद करने का या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है आप इस ट्रिक से खुद भी ये जान सकते हैं. अब आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं. तो इसका जो वंस डिजिट है वो 9 है तो इसके स्क्वायर का वंस डिजिट 1 होगा. ये 1 है तो इसके स्क्वायर का 1 डिजिट 1 होगा. ये 3 है तो ये 9 होगा उसके स्क्वायर का वंस डिजिट. 4 है तो उसके स्क्वायर में वंस डिजिट 6 होगा. एंड सिमिलरली यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द रिमेनिंग वन. ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर. तो फिर इसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि अगर मान लीजिए a+1 का स्क्वायर हो और -a स्क्वायर हो तो इसका आंसर में सिर्फ हम लोग इस दोनों नंबर को ऐड कर देंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर कितना होगा, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है और इसके स्क्वायर का डिफरेंस हमें निकालना है. तो सिंपली वी विल ऐड 4 and 3, द आंसर विल बी व्हाट? 7. इसी तरह से इफ़ यू फाइंड 17 स्क्वायर -16 स्क्वायर तो इसका आंसर क्या होगा? 17 + 16 दैट मीन्स 33 होगा इसका आंसर. तो इसी प्रॉपर्टी से यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस वन. 19 स्क्वायर -18 स्क्वायर विल बी 19 + 18. 30 स्क्वायर -29 स्क्वायर विल बी 30 + 29 एंड 173. इस तरह से आंसर जो है वो आप निकाल सकते हो विदाउट एडिंग मैच द सम. तो इसका भी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर. यानी कि इसमें कितने ऑड नंबर है? 1 2 3 4 5. तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25. तो देखिए 25 सी ऑप्शन है तो सी हो जाएगा, यानी कि 1 का जो है वो इससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे. 1 + 3 इसमें कितने ऑड नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसका सम कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर दैट मीन्स 64 हो जाएगा. ना इसमें कितने ऑड नंबर है? 1 + 3 + 5 में 3 ऑड नंबर हैं तो 3 स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा. इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 तो 6 स्क्वायर दैट मीन्स 36 हो जाएंगे. एंड इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दैट मीन्स 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सो इस प्रॉपर्टी से यू डोंट हैव टू ऐड ऑल द नंबर. सिमिलरली यूजिंग दिस लॉ एंड प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड द आंसर. लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि द नंबर हैज़ टू स्टार्ट विथ 1 ओनली, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी यूज़ होता है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर, और सारे के सारे ऑड होने चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए. तो 1 जो है वो सी है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 25. 2 जो है वो डी है. 3 जो है वो ई है. 3 9 कौन सा आंसर है? ई है. 4 ए है. 4 का आंसर कितना आया? 36. एंड 5 का आंसर 100 आया विच इज़ बी. सो दिस इज़ नॉट completed. One more is there, Pythagorean triplet, right?
9 number. I think this is the last one, so we'll discuss this also. What is actually Pythagorean triplet? We all know that in a right angle triangle, I am explaining you out here, अगर ये 90 डिग्री है, सो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस. वी ऑल नो दैट कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लेकिन इस केस में हमें क्या करना है, वी ऑल नो दिस ऑल्सो दैट हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो जो इसमें लॉन्गेस्ट साइड है 26, इसका हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे, और जो बाकी के दो साइड बच गए हैं उनके स्क्वायर का सम फाइंड करेंगे. तो ये अगर दोनों मैच करे, इफ दे कम इक्वल, देन दे विल फॉर्म अ Pythagorean triplet, and if they are not equal, then they won't form a Pythagorean triplet. तो इस केस में we can see that कि 26 square is equal to 10 square plus 24 square, so this is forming a Pythagorean triplet. Now in this case, if you observe, 50 is the largest number here, so we will do square of 50, which will be 2500. Now we will do 14 square plus 48 square, that means sum of the remaining two numbers, sum of the square of remaining two number, which will also give you 2500. So since 50 square is equal to 14 square plus 48 square, that means the square of the largest number is equal to sum of the square of the remaining two numbers, so this is also forming a Pythagorean triplet. Next is 1879 and 82. So we'll do 82 square and we will find 18 square plus 79 square, and in this case you will see that ki this won't be equal, so this is not a Pythagorean triplet. You can do the calculation in your own, as the texts are not visible, and I think I also don't have time, it will take time, so leave it. 22, 120 and 122, here also you have to find 122 square. Just you multiply whatever you get, that you write here, it's not visible, and 22 square plus 122 square, that also you find. In this case I think that this will come equal, so this is forming a Pythagorean triplet, right? So this exercise is over, exercise 3A, and I hope that कि ये जो 3A एक्सरसाइज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, वो आपका क्लियर हो गया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू आर न्यू